بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹری میٹس کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیر وافیت سے ہوں گے. پہلے بہت معذرت، آج کی یہ بیٹھک جو ہے ہم لیٹ شروع کر رہے ہیں کیونکہ شرما جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کہ اس وقت یو کے میں ہیں. ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، یہ یو کے سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ان کا لاسٹ ایئر ہے، اور یہ آج ہمیں بتائیں گے یو کے میں اسپیشلی پی ایچ ڈی کے حوالے سے وہاں پہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں، پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں پہ پی ایچ ڈیز کی لائف کیسی ہے. تو میں شرما جی کو ویلکم کرتا ہوں اپنی بیٹھک میں. شرما جی اپنا کیمرہ اور مائک آن کر لیں. کیسے ہیں شرما جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیں. ہم ٹھیک ہیں، بڑھیا ہے. اچھا شرما جی، پہلے تو آپ کو دوبارہ دیکھ کے اچھا لگا. پہلے آپ اپنا بیسک انٹروڈکشن کروا دیں، چونکہ ہماری آڈینس زیادہ اردو اور ہندی سمجھنے والی ہے، تو اگر آپ اسی لینگویج کو پریفر کریں تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. سو آپ نے انوائٹ کیا سو اس کا تھینک یو. لسنرس کو السلام علیکم، نمستے، ہیلو. ہوپفلی دیٹ کورز ایوری باڈی. سو جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ میں ابھی تھرڈ ایئر ہوں پی ایچ ڈی، تو یہ میری فائنل ایئر ہے. میں نے ابھی مے بی 1 month ہو چکے ہیں میں نے اپنی تھیسس سبمٹ کی ہے، سو بس ابھی اتر گیا تو ابھی تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہوں وچ از نائس. ابھی تو تھوڑی سی پی ایچ ڈی ایگزامینیشن کی فارمیٹ از ڈفرینٹ جہاں پر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ابھی صرف میری ابھی پی ایچ ڈی وائیوا آنے والی ہے، اس کی ابھی ڈیٹ بھی طے ہوئی ہے جنوری کو. اس کا فارمیٹ یہ رہے گا کہ ایک انٹرنل ایگزامینر رہے گا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور ایک ایکسٹرنل ایگزامینر آئیں گے گیسٹ، اور 2 گھنٹے ہم بیٹھیں گے اور وہ مجھے گرل کریں لڑائی گے. وچ از فائن. سو اس کی تھوڑی سی ابھی میں نے ابھی پریپریشن شروع کر دی ہے. تو ابھی میرا وہ جو اسٹڈی کا پیریڈ ہے ابھی تو میں تھوڑا سا فری ہوں وچ از نائس. بس صرف ایگزامینیشن کی ابھی تیاری ہو رہی ہے. چلیں بیسٹ آف لک. اچھا شرما جی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹڈی ان یو کے، اور آج ہم اس کو اسپیشلی ڈسکس کریں گے پی ایچ ڈی پوائنٹ آف ویو سے. تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے کی اکنامی کافی زیادہ ٹاپل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیگرنگ اکانومی ہے. تو اس کی وجہ سے پی ایچ ڈیز کے اسکالرشپس بہت کم ہو گئے ہیں، سپروائزرس کے پاس فنڈنگ بہت کم ہے، بٹ اسٹل وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں پوزیشنز. تو کیا وے ہے وہاں پہ پوزیشنز کو فائنڈ کرنے کا؟ پروفیسرز کو اپروچ کیسے کریں اسٹوڈنٹس؟ کیونکہ ان کا تھوڑا سا ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے باقی دنیا سے. وہ بہت زیادہ آپ کی ایویلویشن کرتے ہیں اور آپ کے ریفرنس پیچھے مانگتے ہیں. تو یہ سارا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. نو پرابلمس. میں پہلے شروع کرنے سے پہلے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے آڈینس مینلی فارماسیوٹیکل کے بیک گراؤنڈ کے ہیں یا اوکے؟ تو میرا بیک گراؤنڈ تو فارمیسی میں ہے، سو اس کا بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کی اکانومی از ناٹ دا بیسٹ اور اس میں میرے خیال ایک دو چیزیں ہیو میڈ اٹ ورس، اور وہ ہے بریکسٹ ہوا تھا اور ابھی بھی اس کے ریپرکشن ابھی آ رہے ہیں. تو ایسے تھا پہلے یورپین فنڈنگ کافی ملتی تھی ریسرچ کرنے کے لیے. سو لوکل ریسرچ باڈیز بھی ہیں جس سے فنڈنگ مل سکتی ہے. ایم آر سی میڈیکل ریسرچ کاؤنسل یو کے کی از دا بگیسٹ ون. اور اس کے علاوہ وہ جو یورپین فنڈنگ ریسرچ فنڈنگ اسٹریمس تھی اس پر بھی بریکسٹ سے پہلے وی ور ایلیجبل ٹو اپلائی. ابھی وہ ختم ہو چکا ہے. سو اس کی وجہ سے بھی کافی فنڈنگ اپرچونیٹیز کم ہو چکی ہیں. ایسے نا جو یہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایسے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ جو وہاں سے ریسرچ فنڈنگ ابھی نہیں ہوئی، جب بھی نہیں مل رہی، جب بھی نہیں ایلیجبل ہے اپلائی کرنے کے لیے، وہ تھوڑا سا میچ کر رہے ہیں. سو دے ٹرائنگ ٹو، ابھی وہ فل پیرٹی پر نہیں آ چکا پر وہ کوشش کر رہے ہیں. سو تھنگس شوڈ امپروو. 1-2 سال میں آپ ہوپفلی دیکھیں گے کہ اپرچونیٹی زیادہ رہے گی وچ از گڈ. اینڈ
آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ بھی تو ریسرچ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. ایک 100% very جی. vibrant environment. It can be very vibrant, can be inspiring as well. So جتنی ڈائیورسٹی رہتی ہے ایسے انوائرمنٹ میں it's nice. آپ کو لرننگ اپرچونیٹیز بھی ہیں, کولابوریشن کی اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور سیکھنے کی بھی اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں ہماری اپروچ ہے کہ یہی اچھی اپروچ ہے, آپ اپنے کولیگ سے سیکھیں گے کہ دس از ناٹ دا بیسٹ اپروچ, دیر آر بیٹر وے ٹو ڈو تھنگس, اینڈ سو اٹس نائس ٹو ڈائیورسٹی اچھی ہوتی ہے. سو انکریج کروں گا کہ آپ یو کے آئیں اور اپلائی کریں. ریئلی ہوپفلی آپ کی جرنی بھی جتنی میری جرنی اچھی رہی ہے تو آپ کی بھی رہے گی. ٹھیک ہے, تو وہاں کی جو گورنمنٹ کے اسکالرشپس ہیں لائک چیوننگ اسکالرشپس, یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, سو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپروچ, اگر میں ابھی شروع کر رہا تھا, if I was to start today, تو میں ایسے اپروچ کروں گا اس کو. آپ اپنے چوزن ڈپارٹمنٹ کو پہلے ڈھونڈیں. سو میرا رہے گا فارمیسی. سو یہاں یو کے میں اسپیشلی ان انگلینڈ فارمیسی ڈپارٹمنٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں, مے بی 20 ہیں. تو پہلے اپنی اسپیشلٹی دیکھ لیں اور آپ چوزن یونیورسٹیز کو تھوڑا سا شارٹ لسٹ کر لیں. وہاں پر آپ ڈپارٹمنٹ, وہ جو ڈپارٹمنٹ ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں, اور اس پر یونیورسٹی کی ریسرچ آپشن رہے گی, وہاں پر جائیں اینڈ دین گو ٹو فلٹر ڈاؤن ٹو یور ڈپارٹمنٹ. پھر آپ کو یہ پتہ لگے گا آپ کے وہ جو وہاں کی پرسنل فیکلٹی ہے ان کا ڈسکرپشن رہے گی. آپ وہاں سے دیکھ لینا کہ آپ کے سو انڈر ایچ فیکلٹی ممبر ان کی جو پی ایچ ڈی پوزیشنز اوپن ہیں وہاں پر لکھی ہوں گی فار ایچ فیکلٹی ممبر. سو وہاں پر جائیں, وہاں پر دیکھیں کہ کون کون سی ٹاپکس ان کی ابھی کھلی ہیں. مور آفن دین ناٹ وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے کہ یہ فنڈیڈ اپرچونیٹی ہے, یہاں پر فل اسکالرشپ بھی مل جائے گی, اسٹائپنڈ بھی ملے گا. سو اس کی انفارمیشن آپ دیکھیں, اور جو آپ کا تھوڑا سا مطلب ریسرچ انٹرسٹ کے ساتھ الائنمنٹ ہے تو یہ بھی ویری وہ آپ خود مطلب شارٹ لسٹ کر لیں اور چیک کرتے رہیں. ایک اور بھی طریقہ ہے کرنے کا, یہاں پر ویب سائٹ کافی کمپریہنسو ہے, findaphd.com, اور اس میں یو کے کی سب پی ایچ ڈیز لسٹڈ ہے. سو اور وہ بھی آپ مطلب کی ورڈ کے ساتھ آپ سرچ کر سکتے ہیں. سو اپنی جو آپ کا ریسرچ انٹرسٹ ہے, آپ کی اسپیشلٹی, آپ کا پہلا سا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ آپ فلٹر کر سکتے ہیں اینڈ دین سرچ کہ یو کے وائڈ کہ آپ کی کون سی انٹرسٹ ہے, اور وہ آپ کو شارٹ لسٹ دے دے گی. اور وہاں سے دین یو کین مے بی موو ٹو دی یونیورسٹی ویب سائٹ, اور انڈیویجول پروفیسر کی پروفائل دیکھیں, ان کا ریسرچ آؤٹ پٹ دیکھیں, ان کا ریسرچ گروپ دیکھیں, کیا کون سا کام کر رہے ہیں, ان کی آؤٹ پٹ کیسی ہے. اور اگر آپ کو انٹرسٹ لگے تو ان کو ای میل بھی لکھا ہوتا ہے, آپ پہلے ان سے ای میل کریں, ویری مچ سو ای میل کریں, تھوڑا سا ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں, از ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں. یس, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ای میل میں ایسا کیا مینشن کرنا چاہیے کہ پروفیسر جو ہے وہ آپ کو ریپلائی کرے؟ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ای میلز کا یہ ریپلائی نہیں کرتے. no, it's true. سو ای میل کی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ رپلائی نہیں کرتے ہیں, اینڈ میرے خیال یہ پرابلم ہے کہ ان کو اتنے ای میل آتے ہیں. سو 50 60 up to 90% تو وہ اگنور ہی کرتے ہیں, which is understandable. تو جو اگر میں یہ اپروچ کر رہا تھا, آئی ووڈ, جب آپ نے شارٹ لسٹ کر لیا ہے, آپ جس سے ای میل کر رہے ہیں پروفیسر کو, ان کا ورک ریڈ کریں, جو ان کا ریسرچ انٹرسٹ اینڈ ریسرچ آؤٹ پٹ ہے. ایکچولی ریڈ اٹ پراپرلی, ایسے نہیں کہ بھی کوئی گلانس کیا, تھوڑا سا ایبسٹریکٹ دیکھ لیا کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے. تھوڑا سا ریڈ کریں, ڈیٹیل میں کریں. اور اگر آپ نے اف یو ٹرولی ہیو اے انٹرسٹ وچ یو شوڈ, کیونکہ آپ پی ایچ ڈی کو اپلائی کر رہے ہیں, پروگرام کو پر اپلائی کر رہے ہیں, یہ آپ کو تھوڑی سی فل ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. ایسے نہیں کہ آپ ہاف ہارٹڈ کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو فلی اپلائی یور سیلف.
सो उनका जो वर्क है ना थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें, एंड देन जब आप उनसे ईमेल करते हैं, really tell them why you want to work in their research group. बताएं कि मुझे ये आपका काम मैंने देखा है, ये आपका आउटपुट है, ये this very much interests me. मैंने आपका ये रिसर्च आउटपुट देखा है, ये मैंने आपकी कॉन्फ्रेंस की एब्स्ट्रैक्ट देखी है, दिस इज वेरी गुड, वेरी मच इन डेवलपमेंट. रिसर्च गेट भी देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको रिसर्च ग्रुप का पता चलता है. जो प्रोफेसर होते हैं वो अपना रिसर्च ग्रुप फॉर्म करते हैं, इट्स वेरी इजीली सर्चेबल इन रिसर्च गेट. और उनके जो प्रिलिमिनरी प्रोग्राम होते हैं, जो उनका प्रिलिमिनरी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर पब्लिश करते हैं, क्योंकि दिस एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. तो अभी उसकी कंप्लीशन नहीं हुई, पर वो अभी ऑनगोइंग है. अगर वो भी मेंशन करें कि आई हैव सीन योर ऑनगोइंग वर्क एंड आई रियली लाइक दिस. तो इट्स आप ऐसे देख रहे हैं ना, क्योंकि जो प्रोफेसर चाहते हैं, दे वांट अलाइनमेंट विद द स्टूडेंट, और आप जो स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए अलाइनमेंट विद द रिसर्च एंड द सुपरवाइजर, सो द प्रोफेसर टीम. सो अगर टॉपिक अच्छा है, आपको इंटरेस्ट कर रहा है, अगर वो काम जो कर रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, then it's always worth applying, and you have to tell them. उनको बताना पड़ता है कि ये मैंने आपका सब देखा है, I really enjoy this, I really think I would excel at this. और ऐसे ना थोड़ी सी बेशर्मी की भी बात होती है, क्योंकि अगर वो पहली दफ़ा आपको रिप्लाई नहीं करते, send them another email. नहीं मिला फिर भेजें, फिर भी नहीं मिला, keep sending. ऐसे कोई बात नहीं है. ठीक है शर्मा जी, जो आपने ये सारा प्रोसेस बताया है कि पहले उनका रिसर्च वर्क, रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो पढ़ें, फिर लिंक्डइन पे जाके उनके जो पेपर्स वो शेयर करती हैं, तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लगती है मुझे. तो आपको लगता है कि जो साउथ एशियन पीपल हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से चलते हैं? क्योंकि यूरोपियंस को तो हमने देखा है कि बड़ा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं. तो स्पेसिफिकली साउथ एशियंस के लिए बताएं कि वो कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी एप्लीकेशन को और प्रोसेस को लेके चल सकते हैं. सो मेरे ख्याल से अगर आप ऑर्गेनाइज्ड मेथड में काम करेंगे, अपना एप्लीकेशन भी ऑर्गेनाइज्ड मेथड में करेंगे, ये जो आपका प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर है, जो रिसर्च ग्रुप है, उनको पता चलता है कि दिस पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड. तो आप पहले से ही सोच लो कि आपका जो इंटरव्यू है ना पहले से ही शुरू हो चुका है. ये बाद में नहीं शुरू होता जब आप बैठे हैं उनके साथ टीम्स पर, जा फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, वो पहला इंटरव्यू नहीं है. आपका इंटरव्यू पहले से ही शुरू होता है. आप जैसे उनको अप्रोच करते हैं, दे आर चेकिंग योर राइटिंग स्किल्स, दे आर चेकिंग योर रिसर्च स्किल्स, कि आपने अच्छी तरह से उनको रिसर्च किया है कि नहीं. वो चेक कर रहे हैं कि आपको उनके रिसर्च के बारे पता है कि नहीं, इन डिटेल, इनफ डिटेल, एंड हाउ यू कैन. तो ultimately I think आपको ये demonstrate करना है कि how do you add value to what they're doing. That's the, अगर आप ultimately आप वहाँ learning के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, which is good, but ऐसे होता है ना, आपको जो student है can add value to a research group in many ways. वो आपकी enthusiasm देखते हैं, वो देखते हैं कि आप don't want to be a burden to the group, so they want to see initiative. वो आपका initiative देखेंगे. So all these things matter. So अगर देखें, so आपका जो interview process है वो तो first contact से शुरू हो चुका है. बिल्कुल. तो जो भी सुन रहे हैं हमें, उनको मैं बताऊं कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ गुजारते हैं. अगर आप इनको अनऑर्गेनाइज्ड वे में, नॉन यूनिफॉर्म वे में अप्रोच करेंगे तो इनको फौरन पता चल जाता है. ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में एक बड़ा ठहराव पैदा करके इनको अप्रोच करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में इनको अप्रोच नहीं करना. अच्छा शर्मा जी, आपने एक वर्ड यूज किया है, ऐड वैल्यूज. जी. तो मुझे ये बताएं कि एवरीवन जो है, एवरीवन वांट्स टू डू पीएचडी, बट ओनली फ्यू वन वांट्स टू ऐड वैल्यूज. तो आप मजीद इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दें, एलेबोरेट कर दें कि ऐड वैल्यूज का क्या मतलब है. पीएचडी तो हर कोई करना चाहता है. जी जी. No, okay, so जो पीएचडी की जो होल प्रोसेस, जैसे मैं उसको समझता हूँ, जैसे मैंने देखा है, आई सी इन अ वेरी
मैं अपनी लेंस से देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उसी की बात कर सकता हूँ। पर जो सुपरवाइजर होता है ना, उसको ये चाहिए कि मैं आपको एक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल भी देता हूँ जो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा था। अम, अ, वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आता है उनके पास, he or she wants to learn, is enthusiastic about the subject, enthusiastic about the work. तो ऐसे ना, जब आप शायद अंडरग्रेड से मास्टर्स करते हैं तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने काम करना है वो थोड़ा सा आपने खुद लीड करना है। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो जाता है जो मास्टर्स होती है अंडरग्रेड से कंपैरिजन जो कर रहे हैं। जब आप पीएचडी पर जाते हैं देयर इज नो स्ट्रक्चर, Yes. उसका स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना पड़ेगा। और जो पीएचडी का सुपरवाइजर है वो आप समझ लें कि वो आपका स्ट्रक्चर आपके लिए नहीं करेंगे, आपने खुद आपका स्ट्रक्चर बनाना है और उनको बताना है कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो सो दस मेरे ख्याल ये इज द मेन, ये पहली मतलब हर्डल होती है जब आप थोड़ा सा ट्रांजिशन करते हैं टू पीएचडी स्टडीज। तो रही वैल्यू एडेड की बात, तो आपका जो सुपरवाइजर होता है ना, आपको मे बी मेरे ख्याल से मे बी ईयर 2 या ईयर 3 में आपको पता लग जाएगा कि जो इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है, you will potentially know more than your supervisor. Yes. Yeah. So तो ऐसे ना जो supervisor होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, they have a number of students across maybe a number of subjects and number of topics जो काम कर रहे हैं। पर आप जो कर रहे हैं, you're going very deep in this one topic. So थोड़ी देर बाद you will realize you have more subject knowledge in depth than your supervisor. और जो आपका supervisor होता है, they are there as an advisor, और वो आपको जो रिसर्च का जो मेथड है वो उस पर आपको एडवाइस करेंगे। जो इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है आपको शायद उनके कंपैरिजन से ज्यादा पता हो चल जाएगा बाय द एंड, बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग वेरी वेरी नीश, वेरी डीप इन वन एरिया। सो और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सो जो हमारा रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने मे बी 2 or 3 years ago उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, and it was a collaborative effort between all the group, और उन्होंने उसको नेचर में भी पब्लिश किया। सो इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ वर्क, उनका काफी फ्लैगशिप वर्क है। तो मैं अपने सुपरवाइजर के साथ बैठा हुआ था और वो बता रहे थे कि हाँ, जो हमने ये पेपर किया था उसका जो रिसर्च मेथड था, तो वो था, आई थिंक उन्होंने किया था सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। और उन्होंने डेवलप ग्लोबल प्रेवलेंस मेथडोलॉजी को कैलकुलेट करने के लिए। और वो मुझे बता रहा था, उसके पास ऑलवेज नोट पैड और पेन होता है जो मेरे सुपरवाइजर है, तो उसने खोला तो बता रहा था ड्रॉ करके कि ये मैंने ये किया। तो हमने एज अ ग्रुप पहले कंट्री वाइड प्रेवलेंस ली, देन कॉन्टिनेंट वाइड, एंड देन कंपैरिजन। ही वाज एक्सप्लेनिंग द फुल मेथड टू मी। और मुझे तो ये तो बड़ा अच्छा लगा मेथड, क्योंकि आई हैव इंटरेस्ट एंड आई वांट टू लर्न। और तो मुझे वो मे बी हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए वो बताता रहा कि ये ऐसे उन्होंने स्टेप वाइज किया इसकी मेथडोलॉजी। एंड ऐसी मेथडोलॉजी प्रेवलेंस स्टडीज में अभी इन्होंने मेरे ख्याल पहली बार यूज की थी। सो इट्स नोवेल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, आस्किंग लोड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन तो मेरे पास, अच्छा तो ये यहाँ पर क्या हर्डल थी, तो मैंने सब पूछा, फुल उनकी इंक्वायरी की। तो उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट मीटिंग थी, सुपरवाइजर ने कहा कि उनके पास स्टूडेंट आते हैं who are not interested in learning or anything, and then उसने सुपरवाइजर ने ये स्पेसिफिक एग्जांपल दिया। लास्ट मीटिंग थे, हम जब बैठे हुए थे, मैंने आपको ये मेथड बताया, तो आप 30 मिनट्स के लिए वेरी इंटरेस्टेड, फुल अटेंशन मिल रही थी, फुल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट एंड आई वांट टू लर्न। और उन्होंने सुपरवाइजर ने कहा कि हमारे पास जो आते हैं मे बी 60-70%, मैं उनको ये मेथड बताता, दे वुड स्विच ऑफ।
ओके या वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया. सो आपको ऐसे ना दे लुकिंग फॉर enthusiasm in this topic, or they are looking for जो फॉर एग्जांपल एडेड वैल्यू, वो जो मेथड उन्होंने यूज किया, कैन आई यूज इट इन माय वर्क, जो उन्होंने पहले किया, हाउ कैन आई यूज इन माय वर्क, मैं जो उन्होंने किया ये मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ हमारे काम में. और जी, और फॉर एग्जांपल अगर किसी और ने कुछ कोई और मेथड यूज किया, वो हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं. सो इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू, चेंज अडॉप्ट करके विल इट फिट आवर रिसर्च स्ट्रेटजी. सो अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और इवन इफ यू ट्राई टू ऐड वैल्यू, दे विल वैल्यू. बिल्कुल. तो जितने भी सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अपनी ईमेल में ये लाजमी मेंशन करें कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन करें, आपका मोटिवेशन लेटर पढ़ें, ठीक है, आपकी जो सीवी है वो रिव्यू करें. क्योंकि जो मोस्टली ईमेल्स हैं उसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो तमाम प्रोफेसर्स को पता है कि हर कोई ये करना चाहता है, बट कोई कोई होता है जो वैल्यूज ऐड करता है. उसकी एग्जांपल जैसे शर्मा जी ने दी कि आप ये काम कर रहे हैं, तो इसको मैं अपने काम में कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ. कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके एक नई अडैप्ट चीज करके आप अपने काम में फिट करें, अपने काम में फिट करें. तो ये आप और उनको यही तो ईमेल. इनोवेशन होती है ना, थोड़ी सी इंक्रीमेंटल इनोवेशन होती है. आपने जो किसने किया, आपने थोड़ी सी उसको इंक्रीमेंटल चेंज किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया, ऐसी तो साइंस आगे चलती है. तो अरूज, आपके क्वेश्चन का आंसर हम एंड पे करेंगे. अभी क्रॉस टॉक है शर्मा जी के साथ. अच्छा शर्मा जी, जब भी बच्चे एसओपी लिखते हैं और मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, आपको पता है ये कंट्रीज जो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये मोटिवेशन लेटर और एसओपी बहुत गौर से पढ़ते हैं. तो कैसे इफेक्टिव एसओपी और मोटिवेशन लेटर लिखा जाए? ओके, सो मेरे ख्याल से उसका स्ट्रक्चर आपने ऐसे करना है कि तो आप पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है. तो जो ये प्रोफेसर्स होते हैं ना, और हमारे दोस्त भी हैं प्रोफेसर्स, पर उनको आपने ऐसे करना है, उन्होंने जो काम किया है उसकी तारीफ करनी है. दे विल लाइक इट. उनकी जो थोड़ी ईगो होती है ना, उसकी थोड़ी सा ईगो की थोड़ी सी मालिश करनी है. इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोक देयर ईगो. सो इट्स अबाउट, आई थिंक, जैसे आपने कहा कि उसका स्ट्रक्चर आपने रखना है. इंट्रोडक्शन आप करें अपना. और ऐसे है ना, जो हमारे लोग होते हैं वो थोड़े से अपनी जो तारीफ करनी होती है वो अच्छी तरह से नहीं करते. दे सीम टू बी वेरी रिजर्व्ड. आपको शायद पता ही है. सो पर ऐसे ना आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या किया, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस टुडे. और मुझे एक और कॉन्वर्सेशन याद आ रही जो हमने क्राको में की थी. इट्स लाइक आपने मोर और लेस आपने आपकी खुद की स्टोरी बतानी है. तो और the good thing about stories is that it follows a very उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है. अपने खुद के बारे थोड़ा सा अपने पास्ट में बताएं, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस टू डेट क्या है, आपकी इंटरेस्ट कौन सी हैं, आपने उनके साथ क्यों काम करना है, क्यों काम करना चाहते हैं, और वो जो काम वो अभी कर रहे हैं उसकी इंटरेस्ट आपको क्या है, and then towards the end आपने बताना है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ to do this work, और उसके आगे मैं ये भी करना चाहता हूँ. So it's very much अगर आप थोड़ी सी स्टोरी बता सकते हैं, it reads better, उसकी जो रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है. and मेरे ख्याल उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है आपकी राइटिंग में, वो ऑथेंटिसिटी ज़्यादा आती है अगर आप थोड़ा सी स्टोरी बता सकते हैं. शर्मा जी, चैट जीपीटी के दौर में मैं जब भी प्रोफेसर्स के पास बैठा होता हूँ
تو وہ مجھے اکثر کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کانٹینٹ ہے. تو جی. اس سے بچے کیسے بچیں چیٹ جی پی ٹی کے دور میں؟ تو یہ تو ایسے نا اگر آپ دیکھیں گے کہ جب جب بھی ان کو اپلیکیشن ملتی ہے دے آل ریڈ دا سیم. ان کی جو ریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ سب نے سیم چیزیں لکھی ہوئی ہیں, شاید چیٹ جی پی ٹی کی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی اپنی خود کی سٹوری بتائیں گے اٹس ویری یونیک, اور آپ کی طرف سے آپ کی بھی سٹوری ہے, میری بھی سٹوری ہے. اگر ہم دونوں لکھیں گے ون لیٹر ہماری خود کی سٹوریز, اس میں ڈفرینسز تو رہیں گی نیچرلی. اینڈ آئی تھنک جو پروفیسرز ہوتے ہیں نا دے آر لوکنگ فار جینیوئن اپلیکیشن. آپ نے اوکے تو ہم سب کہتے ہیں کہ آئی واز گڈ ایٹ میتھس, آپ نے لکھ دیا آئی ایم برلینٹ ایٹ میتھس. ایسا تو ہوتا ہے, اس فائن. پر جو آپ کی اسٹرینتھس ویکنیسز ہیں, آپ کی جو آپ نے جو سیکھا ہے, سو یو کین سے آئی ایم گڈ ایٹ میتھس, but I'm good at maths because I undertook a research methods extra module and training during my masters, which has prepared me. So I have an extra understanding of, statistical analysis and quantitative research methods. So ऐसे ना आप अपनी खुद की strengths बता सकते हैं without just saying कि ये मेरी strength है. आपने थोड़ी सी अपनी story में बता देना कि मैंने ये जो मास्टर्स की थी इस ग्रुप में इसके साथ की थी, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं बाय अंडरटेकिंग एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स. वो मैंने सोचा विल बी गुड फॉर माय डेवलपमेंट, सो आई अंडरटुक देम, व्हिच हैज लेड मी टू हैव कॉन्फिडेंस इन रिसर्च मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो आपने उसमें आपने खुद की स्टोरी भी बताई है, आपने आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि अगर आपको अपने इनिशिएटिव भी अपना आप दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली और आपने ले ली. सो आपने वन सेंटेंस में काफ़ी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर दी हैं और विदाउट सेइंग कि ये मेरी स्ट्रेंथ है. तो स्टोरी टेलिंग में आप काफ़ी, मेरे ख्याल से आप काफ़ी आपकी खुद की हिस्ट्री बताएंगे, आपके स्टडीज़ की पास्ट भी बताएंगे, आपकी स्ट्रेंथ्स भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन अ वेरी एलिगेंट वे. बिल्कुल, टू समराइज के जेन्युइननेस आपने शो करनी है, ठीक है? अगर उनको पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है या ये इस बच्चे ने खुद लिखा है, उससे हेल्प लें उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट कोशिश करें जो अंदर से बातें निकल रही हैं, ठीक है? वो हम कहते हैं ना कि अगर दिल से दुआ निकले तो वो आसमान तक पहुंचती है. शर्मा जी, ये जो नो एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना जो किसी ने हार्ट फेल्ट लिखा है वर्सेस चैट जीपीटी का, वो खुद वो ऑब्वियसली नजर आता है. द डिफरेंस इज आई मीन मैं समझता हूँ एंड आई सिंपैथाइज, क्योंकि वो जो इंग्लिश इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज, वो मुश्किल हो जाती है टू अपना पॉइंट अक्रॉस करने के लिए. इट्स डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिस करें बिल्कुल. तो हमारा जो सायरा मैडम सायरा के साथ सेशन हुआ था, उन्होंने भी यही कहा था कि स्पीक एवरी डे, प्रैक्टिस करें, शीशे के आगे खड़े हो जाएं, अपने घर वालों से बोलें, दोस्तों से बोलें, ठीक है? वो आपको जुगते भी मारेंगे शुरू में, बट आपने मैं एक और टिप दे सकता हूँ इफ आई मे. मैंने किसी की वीडियो देखी थी और वो कह रहा था कि आपने खुद की स्पीकिंग की ऑडिट करनी है, और वो ऐसे करते हैं 2 or 3 ways. वो कह रहा था कि आप पहले से करें, अपने फोन पर 5 मिनट की आपकी कोई भी टॉक बातें करते हैं रिकॉर्ड कर लें. उसके बाद आपने पहली चीज ये करनी है कि वॉल्यूम अप और फोन नीचे करके पहले आप सुने कि आप कैसे साउंड करते हैं. तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पर ये वर्ड अच्छा नहीं यूज किया, या यहाँ पर मैंने थोड़ा सा या आ ज्यादा किया. तो वो आपको पहले ये करें, because that will give you an idea of आप साउंड कैसे करते हैं to others. दूसरी स्टेप है आपने फोन उठाकर वॉल्यूम ऑफ और फिर ऑब्जर्व करें कि आपके मैनरिज्म्स कैसे हैं जब आप बात करते हैं. मे बी आप हेड थोड़ा सा साइड में करते हैं, या
वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो आपने खुद की मैनरिज्म देखें कि आप जब बात कर रहे हैं हाउ यू लुक टू अदर पीपल, क्योंकि वी डोंट डू दैट नॉर्मली. यस और तीसरी चीज है टू वॉच इट विद साउंड एंड वीडियो. यस तो तो ये आप खुद की ऑडिट हो जाएगी, but दिस इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल. जो हमारी स्पीकिंग है ना, ये आप अभी करेंगे will help you now but will help you for the rest of your life. यस तो शर्मा जी, आपने एक MRC फंडिंग का बताया, findaphd.com बताया, फिर वहाँ पे indeed.com भी एक वेबसाइट चलती है, इसके अलावा NIH की भी फंडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें NIH की फंडिंग. Yeah, so तो सॉरी NHS, सॉरी NHS. NHS जी, तो ये तो मेरी ये मेरा रूट था पढ़ने के लिए. सो अगर आप क्लिनिकल पर्सन हैं, एज इन क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप PhD फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और उसमें ये है कि वो जो PhD का फोकस होता है, इट्स ऑन क्लिनिकल एंड रिसर्च. सो उसमें दोनों की ओवरलैप होती है. सो और वो आप इज ओपन टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऑप्टिशियन हैं, डाइटिशियन हैं, पडाइट्रिस्ट, फिजियो, सबके लिए खुला है. दिस इज वेरी ब्रॉड स्कोप उसका. तो वो ऐसे करते हैं, दे कैन हेल्प यू विद प्लेसमेंट एज वेल. सो वो कभी कभी ऐसे होता है, कोई जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं उनकी स्प्लिट पोस्ट होती है. सो क्लिनिकल, उसमें क्लिनिकल कंपोनेंट भी होता है जब आप थोड़ा सा क्लिनिकल वर्क भी करेंगे. और देन उसकी मेजॉरिटी में भी 60 कभी कभी 60%, कभी कभी 75% उसकी रिसर्च कंपोनेंट रहेगी. सो और उसमें ये अच्छी बात है कि इस फ्लेक्सिबल. अगर आपने थोड़ा सा क्लिनिकल का कंपोनेंट कम करना है तो आप कर सकते हैं, और रिसर्च का कंपोनेंट ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं. और उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आई थिंक यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द UK. बट दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, वो भी हो सकता है. दैट्स यू नो. यस, क्योंकि मुझे NHS से इसलिए रिजेक्शन आई थी कि मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं था, और उन्होंने ये ईमेल में क्लियर, और जितने भी ये हमें डॉक्टर्स, फिजिशियंस और ये फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट जितने भी सुन रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, अगर आप उधर के रजिस्टर्ड नहीं हैं तो NHS फंडिंग आपके लिए नहीं है, आपने इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना. अच्छा शर्मा जी, अब ये बताएं कि वहाँ पे स्कॉलरशिप कितना मिलता है, और उस स्कॉलरशिप में लाइफ स्पेंड करना इजी है? अगर फैमिली आपने साथ लेके जानी है तो उस फैमिली का वहाँ पे गुजारा हो सकता है, और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, घर का रेंट, स्पेशली फॉर PhD, नॉट फॉर अंडरग्रेजुएट और मास्टर्स. जी, नो इट्स ओके. तो अगर आपको फुली फंडेड पोजीशन मिल जाती है विद स्कॉलरशिप, आपको एक टैक्स फ्री स्टाइपेंड मिलेगी. I think it was around £1,800 थी per month. 1800. जी, yeah, it was about 1,800. So it's so maybe मैं थोड़ा सा off topic जा रहा हूँ. And then we'll come back. शर्मा जी, मेरा एक दोस्त है, उसको 1200 मिल रही है उधर. 1200. अच्छा, okay. So मेरे ख्याल से डिपेंड करती है आपकी थोड़ी सी जो स्पेशलिटी में आप जा रहे हैं, क्योंकि again मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है इस NHS फंडिंग की साइड में से. सो इट माइट बी डिफरेंट. दूसरी साइड का मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं, पर वो ऐसे करते हैं ना, वो उसको एनुअली इंक्रीज भी करते हैं. सो एवरी अप्रैल उसका इंक्रीमेंट होता है. नॉट बाय मच, मे बी 1 or 2, समटाइम्स 3%, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट की पॉलिसी. सो इट डिपेंड्स. उसमें सर्वाइव करना इज क्वाइट हार्ड. I won't lie. अगर आप जैसे आपके फ्रेंड को मिल रही है 1200, that is very difficult, क्योंकि उसमें से आपने अकोमोडेशन का भी निकालना है. अगर आप मतलब यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में लेंगे रूम, उसका मिनिमम रहेगा about £500-600 a month. So it's not. So आपकी वो जो nearly 30-40% अभी पहले से चलेगी. तो अगर आप ऐसी तरह की रूम इन अ डॉर्मेट्री जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में लेंगे, then
ये अच्छी बात है कि उसमें बिल्स इंक्लूडेड हैं, सो बिजली, गैस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड वो सब इंक्लूडेड है, सो उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं रहता। अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस टिपिकली नो आइडियल प्लेस। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, इसमें आइडियल तो आप में भी देखेंगे फॉर ए फ्लैट और ए रूम शेयर इन अ हाउस, और उसके खर्चे भी अराउंड मे बी £500 to £700-800 डिपेंडिंग ऑन साइज। अगर आप फुल हाउस लेंगे तो 800 प्लस हो जाएगा, और उसकी देन ये चैलेंजेस हैं कि आपके बिल्स भी रहेंगे ऑन टॉप ऑफ द जो कॉस्ट है। सो गैस इलेक्ट्रिक बिल्स रहेंगे, आपने ब्रॉडबैंड भी लगाना है, मोबाइल फ़ोन भी रखेंगे, उसका भी खर्चा रहता है। पर इसके ये मेन कॉस्ट रहते हैं। उसके बाद तो एज ए स्टूडेंट यहाँ पर काउंसिल टैक्स भी लगता है, जो आप समझ लें जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स होता है ना, उनका जो हाउसिंग का टैक्स लेते हैं, वो स्टूडेंट्स को माफ है। सो स्टूडेंट्स, फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं देते, सो दैट्स अ गुड थिंग। या सो मेन खर्चे रहेंगे बिल्स, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक, ब्रॉडबैंड एंड आपका फोन और खाने का, घूमने का। so, तो शर्मा जी, अगर बच्चों को स्कूल में भी वहाँ पे अगर एडमिट करवाना हो तो आपको लगता है कि 1200-1800 पाउंड में सब कुछ हो जाएगा, या बच्चों की एजुकेशन फ्री है वहाँ पे? यहाँ पर फ्री है बच्चों की एजुकेशन, फ्री ऑल द वे टिल 18। एंड व्हाट टिल 18? ओके, व्हाट अबाउट मेडिकल? अगर आप बीमार हो जाते हैं? यहाँ की मेडिकल केयर इज आल्सो फ्री। ओह, दैट्स ग्रेट। सो आप अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी फ्री है, अपॉइंटमेंट्स है फ्री। अगर आपको हॉस्पिटल केयर चाहिए दैट इज आल्सो फ्री। प्रिस्क्रिप्शंस की चार्ज होती है, एज ए स्टूडेंट आपको वो चार्ज माफ है। तो मेडिसिन भी फ्री है फार्मेसी में, या वो खुद लेनी है? जी, मेडिसिन फ्री है फार्मेसी से, या वो खुद लेनी है? तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पर दवा मिलती है, वो आप अगर केमिस्ट पर लेके जाएंगे आपकी प्रिस्क्रिप्शन, वो मेनली फ्री मिल जाएगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो एलिजिबल है। अगर काम करते हैं तो उसकी नॉमिनल चार्ज होती है, फ्लैट फी। मतलब अभी मेरे क्या वो चार्ज है पर आइटम इस बार में भी £9, £10। तो ये चीज़ हमें मैडम सायरा ने भी बताई थी जब वो यूके में थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको मेडिसिन बिल्कुल फ्री मिलती थी फार्मेसी से। तो वहाँ पे ये यूएसए में ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल फ्री मिले, एजुकेशन फ्री मिले। तो यूके जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है पूरी दुनिया में, यूके। और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपनी लाइफ को आप जाके इंजॉय करें। अच्छा शर्मा जी, आपने एक्सपेंसेस भी सारे बता दिए, घर के किराए से लेके बीमारी तक हर चीज़ हमने कवर कर लिया। आपने फंडिंग बता दी, आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का तरीका बता दिया, हर चीज़ आपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्लेन की है। बट स्टिल आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बच्चे यूके आएं या ना आएं? और ऑनेस्टली बताना है आपने। ओके, नो ये मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ। सो अगेन मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपने दो पर्सपेक्टिव से बताना है, जो रिसेंटली सेल्फ पे गए हैं और जो आना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप पे। नो मैं ऐसे कहता हूँ, I'll start with my example क्योंकि I think it will be relevant. So ऐसे ना यूके में मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मतलब मैं यहाँ पर फार्मासिस्ट का काम कर सकता हूँ, which I do। और जब मैंने डिसाइड किया था कि मैंने रिसर्च करना है, कि मुझे पे कट लेनी पड़ी करने के लिए। सो काम भी ज्यादा, दिमाग भी ज्यादा खर्च हो रहा है। यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी पड़ती है और पे कट भी लेनी पड़ी। पर ऐसे ना, सो समटाइम्स जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, यू हैव टू डू फॉलो योर इंटरेस्ट, इज ओके, बाद में पैसे कमा लेंगे, इज फाइन। सो द गुड थिंग अबाउट ये सिचुएशन आपके लिए और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इज दैट
जो यहाँ के होम स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको पे कोट लेनी पड़ती है, they will not do it, which means यहाँ के home students don't undertake research degrees हमारी field में and medical fields. Overall in Europe, overall Overall, yeah, क्योंकि उनको पे कट लेनी पड़ती है. Nobody कम wants to, लेती है. yeah, nobody wants to take a pay cut because अगर आपको opportunity है to work and you can make more money versus doing research and making less money. So, Sharma ji, जी. that's why I consider all the PhDs are modern slaves, you know, in 21st century. Absolutely, yeah. Especially from South Asia, because you know, all the PhD students in Europe, all over the Europe, they are getting very less salary, and all the Europeans, they don't want to do PhD because of low salary structure here. Yeah. नहीं, so yeah, no, मैं आपकी बात से totally agree करता हूँ. So yeah, so पहली तो ये consideration है कि अगर आप overseas student हैं और यहाँ पर PhD करना चाहते हैं, आपको इतनी ज़्यादा competition नहीं मिलेगी against home students. Yes. इसलिए because जो यहाँ का जो stipend structure है versus working is not attractive home students के लिए. So which is good because that leaves opportunity for foreign students to come and learn, which I think is a great thing. So yeah, so sorry, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? हमने थोड़ा सा टेंजेंट में चले गए. सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स के लिए और जो स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, इनका कंपैरिजन बता दें कि वो आए या ना, स्पेशली सेल्फ फंडेड. Okay, self funding is, so self funding की ये प्रॉब्लम है कि आपको काम काफी करना पड़ेगा, खुद उसकी फंडिंग भी करनी पड़ेगी. So it better be something that you really want to do. so मेरे ख्याल से ना सब चीज की बैलेंस होती है. अगर आप सेल्फ फंडिंग करेंगे PhD तो उसका खर्चा भी रहेगा, पर उसकी ये प्लस साइड रहेगी कि आपको खुद की PhD प्रोग्राम को टोटली शेप करने की एबिलिटी रहेगी. मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, you can super focus in what you want to do and shape it the way you want. तो सेल्फ फंडिंग की ये पॉजिटिव्स है, पर नेगेटिव्स भी है क्योंकि आप खुद सेल्फ का फंड कर रहे हैं, so it can be quite costly. So उसमें फीस भी रहेंगी और वो जो पहले हमने बात कर चुके हैं खर्चे के as well, they will also be there on top of the fees. So positives and negatives. अगर आप फंडेड प्रोग्राम में जाएंगे into a research group जहाँ पर फंडिंग है और आपको थोड़ी सी जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी via a stipend, उसकी ये पॉजिटिव्स है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा in terms of financial help. उसकी ये डाउन साइड है कि the research topic might not be fully 100% to your interest. So it may be a topic जो आपको थोड़ा सा interesting लगे, but it may be थोड़ा सा outside of your interest area. So pros and cons to both. और आपको खुद का बैलेंस देखना है कि आपके लिए what is better for you. बिल्कुल बैलेंस देखना है. अच्छा, ये जो शर्मा जी कह रही हैं इंटरेस्ट, तो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं और तुम PhD कर रहे हो और ये वो. तो मैंने उनको यही कहा है कि आई एम फॉलोइंग माई इंटरेस्ट, ठीक है, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन और दूसरा साइंस में नाम पैदा करना. अब साइंस में गरीब ज़रूर होंगे, ठीक है, बट एक वक्त आएगा कि आपके जो एक्शंस हैं उनकी इको बहुत देर तक सुनाई देगी, ठीक है. तो शर्मा जी आपने हमें सारा गाइड किया. आप कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं. मोहम्मद अतर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सेंड लिंक इन कमेंट्स. थैंक यू. आपने जो फंडिंग एजेंसीज बताई हैं, अगर आप उनके, ठीक है. तो हाफिज साहब, ये शर्मा जी हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, तो मैं इनसे लिंक लेके तो मैं खुद पेस्ट कर दूंगा. ये बिजी भी होते हैं, ठीक है. और अरूज कह रही हैं शर्मा जी
کہ سر آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ایپیڈیمیولوجی and I want to do PhD. Kindly guide me how to approach a supervisor and what to email when you are contacting first time. तो हमने थोड़ी सी पहले भी बात की थी अबाउट दिस, पर पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लें आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन से डिपार्टमेंट पर, कौन से प्रोफेसर को आपने। शर्मा जी एपिडेमियोलॉजी के कोई स्कूल सजेस्ट कर दें यूके में। सो मेरे ख्याल से एपिडेमियोलॉजी alone नहीं मिलेगा, it will be part of a wider school. So जी पब्लिक हेल्थ में भी रहेंगे, प्राइमरी केयर हेल्थ स्कूल्स भी हैं. सो अगर आप देखें अरूज जी, जो यहाँ के मेडिकल स्कूल्स हैं ना, उनकी रिसर्च डिपार्टमेंट्स देख लें, बिकॉज़ दे विल हैव एपिडेमियोलॉजी सब डिपार्टमेंट्स विद इन द मेडिकल स्कूल, और उनकी रिसर्च साइड भी रहेगी. स्कूल्स ऑफ फार्मेसी भी देख सकते हैं आप. तो हैं, but look, जहाँ पर थोड़ी सी वो जो मेडिकल स्कूल्स हैं, they will have very good epidemiology research out there. So तो वहाँ चेक कर लें. तो तो आपने अगेन थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करना है, किस प्रोफेसर को टारगेट करना है. तो वो शॉर्टलिस्ट करनी है. सॉरी शर्मा जी, आपने कहा था उसकी खुशामद भी करनी है जी. एग्जैक्टली. सो तो आप शॉर्टलिस्ट कर लें किसको आपने ईमेल करना है, पर I would be very genuine and talk about your strengths, your skills, and tell your story to them. Be very, very genuine. Yeah. So Uruj, you can try UCL, KCL. Also, you can look at University of Dundee. Really, they have epidemiology department. And also, you can check. I don't think so in Bradford. Do you think? Bradford में Leeds, जो हमारे पास ही है, neighboring city है. They've got very good medical school and also primary healthcare, public health. Yes, Uruj, you can also check. भी बहुत अच्छा है. Nottingham is very good. Birmingham, Nottingham. Yes. Liverpool as well. जी. So Uruj is requesting that, sir, I have sent a CV and cover letter, but I did not receive any reply. Kindly guide in this instant what other documents should be mailed. शर्मा जी, और कौन से डॉक्यूमेंट सीवी और कवर लेटर के अलावा मेल करने चाहिए? सो ऐसे ना जी, तो आप ऐसे कीजिए, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. अगर आपको प्रोफेसर से नहीं रिप्लाई मिल रहा है, तो वहाँ पर वो जो उनके एडमिन लोग होते हैं ना इन दिस पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिपार्टमेंट, उनका जॉब ही यही है कि आप क्वेरीज आंसर करनी है. वो थोड़ा सा आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सो दे शुड होपफुली फैसिलिटेट आपकी कांटेक्ट विद द प्रोफेसर इन अ डिपार्टमेंट. सो आप अगर डायरेक्ट रूट से नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा राउंड अबाउट में काम चला लें. अगर और द अदर थिंग इज, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो फेयर्स भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च फेयर्स, जो आप इन पर्सन भी अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड देम. अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, वो अटेंड करें, या एटलीस्ट इन ऑनलाइन कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आपको जो थोड़ा सा उनका जो फेस टाइम होता है ना, थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा उनको आपके बारे भी थोड़ा सा पता चलेगा, आपको उनके बारे भी थोड़ा सा पता चलेगा, और थोड़ा सा वो जो rapport शुरू हो जाती है. पर रिमेंबर, पहली कांटेक्ट से आपका इंटरव्यू शुरू है. सो इंटरव्यू शुरू है. अच्छा, अगर शर्मा जी से किसी ने बात करनी है तो मैंने लिंक पेस्ट किया है, हम आपका थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे. अगर कोई हमसे कॉल पे जुड़ना चाहे तो शर्मा जी एंड पे एक मोटिवेटेड सा मैसेज दे दें हमारे जो साउथ एशियंस हैं, जिससे वो मोटिवेट रहें. ठीक है, आपको पता है वहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी और हालात कैसे हैं, तो एक मोटिवेटेड सा मैसेज है सबको. ओके. सो ये मैं प्रोबेबली कहता हूँ, आप सबसे एडवाइस देता हूँ कि आपने जो भी काम करना है, वो आपने उसका जो है, आपने उसका शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना. उसका जो व्यू लेना है इज लॉन्ग टर्म.
अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और हमारी भी जो बात होती है ना कि पीएचडी मॉडर्न स्लेव होता है, पर ओके, इसमें थोड़ा सा ट्रूथ है, पर इक्वली आप आपके लिए दिस इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप प्रोफेशनली. और वो जो पीएचडी है ना, डोंट ट्रीट इट एज कि मैं फिर स्टूडेंट बन गया हूँ, थोड़ी सी जो पहली वाली हरकतें करते थे वो अभी भी करेंगे. यू कैन एंजॉय योरसेल्फ, पर ट्रीट इट एज अ जॉब, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है ना, they see you as almost like faculty. They will treat you like faculty, so you come and bring professionalism to your side as well. But yeah, main advice ऐसे है ना, अगर आपने ये प्रोग्राम करना है तो do it with a long term view, क्योंकि आपको immediately उसकी benefit नहीं नजर आएगी, but over time those benefits will compound. अगर आपका research output रहेगा, that will become visible and people will see it and you will have opportunity, but not immediately. You will build connections with many great people, and ऐसे ना, for me जो ये university का environment है is a very, I find a very nice environment because it challenges your thinking, and by challenging your thinking it helps you grow as a person. So for me it's all positive, and I think अगर आप positive intention से करेंगे, उसका result भी positive output ही निकलेगी. So don't worry, positive, go for it, don't be scared. इंजीनियर आदिल का लास्ट कमेंट है, शर्मा जी मैं नहीं चाहता कि ये अनएड्रेस रहे. आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम लास्ट ईयर अबाउट पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट दैट प्रोफेसर हैजंट फंडिंग, so which scholarship should be targeted for PhD in UK? Okay, so ऐसे ना, आप देखें कि आपके रिसर्च फील्ड में कौन सी बॉडीज सपोर्ट रिसर्च. चैरिटीज भी हो सकती हैं, इट कैन बी alumni organizations that support research and provide funding. So आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं कि इन योर फील्ड अगर थोड़ी से आप पब्लिश्ड पेपर्स देखें और उसकी फंडिंग सेक्शन देखें कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको वो बॉडी मिल जाएगी कि कौन सी बॉडी उनकी फंडिंग कर रही है. एंड इफ इट्स रिलेटेड टू योर्स, यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट देम और देखिए उनकी रिसर्च फंडिंग कॉल्स कौन सी हैं, और आप प्रपोजल डाल सकते हैं. The other way to do it is, if you find there's a similar program at a different university which is funded, can you collaborate? Can you ask your two universities to work together? Okay, ऐसे रहेगा ना, then the funding can be transferred across and you get to work at two institutions, which again is a very nice thing. So yes, and this is very common practice in all over the Europe. So इंजीनियर आदिल, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप जब ये सेशन हमारा YouTube पे अपलोड हो जाएगा, इसको आप पैक करके देखिएगा. तो ये कॉमन प्रैक्टिस है ऑल ओवर द यूरोप. ठीक है, तो शर्मा जी आपने पॉजिटिव एनर्जी से बहुत पॉजिटिव बातें की. मुझे आपकी पॉजिटिव एनर्जी से मैं बहुत मुतासर भी हूँ, आपसे सीखता भी हूँ, और हम एक दूसरे से सीखते हैं लाइफ में. तो नेक्स्ट टाइम आपने हमें अपने थीसिस के बाद दोबारा टाइम देना है, और रिसर्च प्रपोजल हमने नहीं डिस्कस किया, उस पर हम 1 घंटा डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि कैसे प्रपोजल लिखना है, गैप को कैसे फाइंड करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव, और आपने बताना है कि रिसर्च क्वेश्चन को कैसे आपने डिज़ाइन करना है, मेथोडोलॉजी कैसे डिज़ाइन करनी है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स को आप कैसे असेस कर सकते हैं. तो इस पे हम एक आपके साथ निश्चित करेंगे. ठीक है शर्मा जी? नो प्रॉब्लम्स. या मैं आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ. प्रोफेसर तो नहीं हूँ, बट आई कैन हैप्पीली शेयर जो मैंने सीखा है, मैंने दूसरों से सीखा है. थैंक यू सो मच शर्मा जी. और जिन लोगों ने हमें सुना, कमेंट्स किए, क्वेश्चंस पूछे, या बाद में जो हमें सुनेंगे, सबका शुक्रिया. सब अपना ख्याल रखिएगा. मैं इस बैठक को ख़त्म कर रहा हूँ. बाय.